sound. I have also started recording. All right. So we were trying to understand independent increments. Acha. But these increments or these independent increments, they might not be true for every case. All right. So as you have seen, we have seen three examples. For example, number A, when it was counting the number of people entering, and he says it might be reasonable that they are independent. For example, what is the time? How many people have entered till 10 o'clock? Or how many people have entered between 10 and 12? They might be independent. But for example, B, he says it will not be reasonable. Because if NT is very large and suppose that there are many people alive at the time T, and this would lead us to believe that between T and T plus time, this would also be large. Well, these are just justifications. They might be dependent or they might be not dependent, and they might be independent. So you can see these examples which he has discussed. So they might have independent or they might not have. For example, you could very well see, let us say, I take two increments, but let us say in those increments, I have this, sub-epidemic or some type of connection between the two intervals. So in that case, definitely they will not be independent increments. But if, those increments, they are totally independent, then it might be the numbers of the counts are independent. So it will all depend on the scenarios governing those increments. हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. All right. So similarly in C, you could have that they are independent. But let us say that if I say that I have the footballer is going to hot streaks, he's goaling at a high rate, or he's going to slumps, he's not goaling. मुझे आजकल कहते जी मुझे कौन सा फुटबॉलर है वो, पता नहीं अर्जेंटीना का फुटबॉलर है, मीजली, पता नहीं क्या मेसी है, पता नहीं क्या. So he was going through a slump. That is why. मेसी है सर वो. क्या है? मेसी ना? यस. मतलब एक स्लम्प ही आता है. मसलन मैं उसका भी जो क्या नाम जो फौत हो गया अर्जेंटीना वाला, मैकडोनल्ड, क्या नाम, मैकडोनल्ड कह दिया, मैराडोना का एक ज़माने में उसका भी स्लम्प था. So if you will take 2 periods within those slumps, they will be not independent. Okay. But yes, if you let us say take intervals when he was going through normal patches, then you might have independent counts. So it depends on a lot of things. We just have to know what are independent counts and what are dependent counts. Independent count means that their distributions could be written, as a product of the independent distributions. Acha. Other things are stationary increments. So the same definition that we have defined for a stationary process. Remember what was a Whiteson stationary process? That is its statistics. They were dependent on its statistics. They were dependent on the difference of time, tau. One, let us say you take one interval at t, and the other times that you are trying to find is t plus tau. So if you take this tau difference, let us say at let us say today, and if you take the same autocorrelation, let us say 10 days afterwards, but with the same tau difference, the covariance autocorrelation will be the same. So these are called stationary processes. Okay. So if the count depends only on the length,
then they will be called stationary increment. कहीं आगे independent increments आ गए जैसे कि independent process होता है, और कहीं आपके पास आ गए stationary increment जैसे कि stationary process होता है. All right, is this clear? All right, so now let us see for the 3 examples with respect to stationary increments. If the people are coming, let us say in store with with normal rate, then all of them will be stationary. But let us say I have some rush hour, then in that case if I take that this time difference between here, I will have greater count as compared to other differences at some other time slots. So in that case stationary assumption will not be justified. All right. Similarly, if you have these notions, then they might be stationary, otherwise they will not be stationary. For example, he says if the patient is if the population is constant, then you can have stationary increments in the the population. But if the population is increasing, then you cannot say that the increments, because the population is increasing, it is just increasing like a a tree diagram. Every person is born, he will be producing more population or more children, so it is in between same intervals the population will be increasing. So but if you have those assumptions, then it might become stationary, otherwise it will not be stationary. Again, you can see with the C example, a soccer player can play more, he can goal more, let us say in this age as compared to this age. Okay, but if you take a smaller time horizon, then it might be stationary. All right. So these are just basically statements, and we just have to understand the wording for independent increments, for stationary increments with respect to a counting process, so that we could apply them finally to a Poisson process. Any questions? All right, so we come here to the Poisson's process. अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि अब माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है नेक्स्ट वेंसडे से, तो उसमें फिर ये होगा ना कि आई थिंक जो मगरिब का टाइम है वो तो फिर 6:30 के बाद ही हो जाया करेगा. इन्होंने वैसे आपकी यूनिवर्सिटी में तो कुछ ऐसा बताया नहीं वैसे कि यस सर, कि आई थिंक वो जैसे हमारे यहाँ यूटी में जो ना सर वो शायद अभी टाइमिंग डिफाइन नहीं हुई. हाँ हाँ, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपके यूटी में क्या होता है शेड्यूल ना. करेंगे, काशिफ साहब बता रहे थे. अच्छा, मगर उन्होंने मैसेज तो फिलहाल कोई नहीं किया. तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि यूटी में क्या होता था ना. अब तो यूटी में उन्होंने शाम का खत्म कर दिया. यस सर, तो जब हमारे यहाँ जब होता भी था ना शाम वाला, पिछले साल तक तो था, तो उसमें तो वो कोई रिलैक्सेशन देते ही नहीं थे. कहते भाई खजूर खाओ तो गुजारा करो. सर ये तो गलत है ना फिर. नहीं, वो तो जाहिर है सर, आप कह सकते सर इनको ना आप ये कह दीजिएगा, वरना यहाँ भी कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी. नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको सच बता दिया कि जी वहाँ ये होता था. मैंने कहा बाकी आप फैसला कर ले जिस तरह आपकी मर्जी. मगर बहल मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि पता नहीं जो भी फैसला हो, अगर फैसला हो गया फिर तो अच्छी होता. अगर फर्ज के खुदा ना से फैसला नहीं होता तो देखिए ना, आज वैसे ही हो गई है, 6 तारीख तो हो गई है, ठीक हो गया ना. अब आगे 8 भी रमजान से पहले आ जाएगा. यस सर. तो और उसके बाद आप देखें कि 13 भी रमजान से पहले आएगा. मगर जो हमारा 15 वाला लेक्चर होगा ना वो रमजान में आएगा. तो 15 को मेरे पास कैलेंडर में मगरिब का टाइम वैसे भी हो जाएगा 6:32 पे. इसका मतलब देखिए ना, सेफली जो है, जो आपकी स्टैंडर्ड टाइम है मास्टर्स टीचिंग का, वो एक्चुअली है कि आपने 150 मिनट्स पढ़ाने से, हम कहते हैं 3 क्रेडिट आवर्स. एक क्रेडिट एक्चुअली होता है 50 मिनट्स का. तो अगर हम 60 मिनट एक लेक्चर में पूरे करते हैं, तो अगले लेक्चर में अगर हम 1.5 घंटा भी पूरा कर लेना, तो हमने एक्चुअली अपना 3 क्रेडिट पूरा कर लिया. तो हम बड़े आराम से 6:30 पे ख़त्म कर सकते हैं, 2 मिनट पहले अफ्तारी से. और उसके बाद आप भी फारिग है, मैं भी फारिग हूँ, आप अपना अफ्तार करें, अपनी नमाजें पढ़ें, ठीक है ना. हमारा जो टाइम है वो पूरा क्रेडिट के हिसाब से पूरा जा रहा है. सर अफ्तारी भी बनानी होती है. सर जी वैसे भी हमने इतना कोर्स पढ़ तो लिया है, रमजान में कोई इबादत करने दे हमें. ओए क्या बात है आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है, इबादत करें. तो बात ये कि मतलब ये तो उसके पैरेलल में चल रहा है ना. साल ही पढ़ते हैं, 1 महीना आता है साल में बस.
हाँ नहीं आपकी बात तो सर सही है। अफ्तारी बनाने जब की आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही हैं आप? सर अफ्तारी बनाने में बहुत टाइम लगता है, अफ्तारी भी बनानी होती है हमने सही बात है। लड़कियों ने। तो सर अफ्तारी से पहले क्या पढ़ा जाएगा सर? सही बात है, मुश्किल तो है, आपकी बात ठीक है। देखिए ना, या तो फिर ये लोग टाइम और एडजस्ट कर सर दें। अफ्तारी के बाद बर्तन धोने होते हैं सर, दोनों टाइम अवेलेबल नहीं है। नहीं तो मैं तो आपको अफ्तारी से पहले छोड़ दूंगा, बाकी आप बाकी टीचरों का सर खाएं। मेरे में तो ये क्या, अफ्तारी पहले बना लिया करें और मेरी क्लास अटेंड करें, उसके बाद आपकी छुट्टी। बहरहाल मैं सिर्फ ये सजेशन दे रहा हूँ, जाहिर है ये तो डिपेंड करेगा आपकी यानी कि डिपार्टमेंट क्या डिसाइड करता है, हमें तो उसी को फॉलो करना होगा। तो जो भी प्रोसेस डिफाइन करेगा, फिर जाहिर है भी हम तो अपनी बेसिकली मॉर्निंग में जॉब वैसे ही होने यस सर, चाहिए। उनसे रिक्वेस्ट तो की है कि जी जी चलो ठीक है, अगर जो वो हमें बताएंगे जरा हम उसी को सर फॉलो उनसे करेंगे। रिक्वेस्ट की है कि वीकेंड पे कुछ शेड्यूल कर लें। हाँ उन्होंने मुझे कहा था, मगर फिर उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने कुछ फैसला करके नहीं सुनाया। बल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह करे फैसला जो भी आपका आता है तो हम ज़ाहिर इसको फॉलो कर लेंगे, वो आगे पीछे कर लेंगे। पर अगर नहीं होता तो मैंने अपना आपको सर बताया, आप मेरा तो सपोर्ट कीजिएगा ना। आई थिंक मुझे तो इन्वॉल्व करेंगे नहीं, मैं तो आपकी यूनिवर्सिटी का हुई नहीं। मैं तो वैसे ही आउटसाइडर हूँ, मगर बहरहाल अगर वो तो पूछेंगे तो सर मैं आप क्या। हमारे टीचर तो है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मैं आपका टीचर हूँ, मगर जाहिर है वो एडमिन ने आपके फैसला करना है, काशिफ साहब ये जो भी आपके आई थिंक डीन या चेयरमैन जो है, पहले अगर वो मुझसे पूछेंगे मैं उनको कह दूंगा भी स्टूडेंट्स का एक कंसर्न था, ठीक है। मैं सिर्फ अपने लिहाज से कहना, अगर खुदा ना खास्ता कोई चेंज नहीं आता तो मेरा तो बड़ा अच्छा टाइम है वो 5 से 6 वैसे ही मगरब से पहले, और 5 से 6:30 तो मगरब इसके बाद ही आएगी, तो हम तो बड़े आराम से अपना कर सकते हैं। पर मेरा सिर्फ सजेशन थी, बाकी फाइनल डिसीजन जैसा डिपार्टमेंट का सर वैसे नहीं, करेंगे। रोजे से घंटा पहले और घंटा बाद तो पढ़ा ही नहीं जाता। खैर बात तो मैंने में होना ही नहीं, हो तो आप बाकियों को डील करेंगे। सर रोजे में रोजे से पहले आपकी बात ठीक है, वो मुश्किल होता है, वाकई मुश्किल, सर रोजे पहले पढ़ना मुश्किल होता है, मगर ये कि रोजे हम में जो जी जी सर रोजे में भी टाइम इसी तरह ही होगा, 2 घंटे का, मतलब चाहे पहले पढ़ाएं बाद में पढ़ाएं, जो वो भी मैं शेड्यूल ये होगा उसमें मैंने भी, आपको यानी यही कि बताया कि मैंने रमजान में आपको तो सर रिलैक्सेशन होती है, मतलब कि हाफ होता है टाइम, जी मतलब अगर 2 घंटे का तो एटलीस्ट 1 का होना चाहिए। रीशेड्यूल तो चलें जो भी वो करें वो तो होगा, लेकिन टाइम भी तो सर चलिए मिनिमाइज वो होता है जो रमजान में। पॉलिसी उनकी आ जाए तो फिर देख लेंगे। मैंने वैसे इन जनरल बताया कि चूंकि हमारे यहाँ ना वैसे होता नहीं था, हमारे वैसे ही आप समझे कि जो टाइम था उस पर इतना ही बढ़ाते थे पहले, तो वैसे तो अगर आ जाएगा तो ज़ाहिर है हमें उसी को फॉलो करना है जिस तरह से ये लोग बताएंगे हमें। और बिल्कुल अगर मैंने कहा खुदा ना खास्ता नहीं भी आता तो मैंने ये कहा कि हम बजाय 3 घंटे पढ़ेंगे हम आराम से 2.5 घंटा भी पढ़ें तो हमारा पूरा आवर्स पूरे हो जाते हैं। हम आराम से 1 घंटा एक दिन एक पढ़ेंगे, एक दिन हम 1.5 घंटा पढ़ेंगे, हमारा पूरा लेक्चर वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा था। खैर टाइम हो गया, मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेता हूँ। 6-4 रोल नंबर 3 प्रेजेंट, रोल नंबर 4 प्रेजेंट है, ठीक है वो तो आप तो हैं। रोल नंबर 6 Present, sir. Present, sir. Present, sir. सही, 3 4 6 हो गए। रोल नंबर 9 Present, sir. रोल नंबर 10 Present, sir. रोल नंबर 18 आप तो थे ही। रोल नंबर 24 प्रेजेंट सर। Present, sir. ठीक है, ऑलराइट 24 इज प्रेजेंट। रोल नंबर 27 is absent today, all right, I can also see। उसके बाद कौन, 28 Yes, sir. ठीक है। रोल नंबर 30 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 34 हाँ Present, sir. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, आई विल एंड द जी। सर 27 रोल नंबर आई थी लेकिन उस लेकिन हेलो सर उसका इंटरनेट का इशू था तो वो पहले उसमें थी। अच्छा अच्छा, हाँ जी अर्शद साहब ये आई थी तो 27 पहले। यस सर, फर्स्ट सेशन में वो थी, वो मतलब बता रही थी कि उसके नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है, तो अच्छा अच्छा, इसलिए वो शायद लीव पे मैंने थी। इनकी प्रेजेंट लगा दी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, मैं लेक्चर एंड थैंक यू करता सर। हूँ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।